हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ऑफ यूनिट 1, that is numbers up to 9999. So let us start the value based question. Manu was watching a news channel. He became sad on seeing the image of floods and landslide in Uttarakhand. Manu and his friends wanted to help the people of Uttarakhand. They discussed with their parents and collected rupees 5450 from their colony and rupees 5540 from school with the help of teachers. The money collected was sent to the concerned authorities. Students, we usually say that there is a flood or landslide in hilly areas. Like few months back, we have already seen the flood in the Uttarakhand near a dam. Similarly, it happens regularly in the hilly area. Once Manu was watching a news channel. Manu news channel को देख रही थी. He became sad. देख रहा था, मनु देख रहा था न्यूज़ चैनल को. He became sad on seeing the image of floods and landslide in Uttarakhand. उसको उत्तराखंड में हुए लैंडस्लाइड और फ्लड को देखकर बहुत दुख हुआ. Manu and his friends wanted to help the people of Uttarakhand. मनु और उसके दोस्त उत्तराखंड के लोगों की मदद करना चाहते थे, उनको जो है हेल्प करना चाहते थे. They discussed their parents and collected, उन्होंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया and collected rupees 5450 from their colony, और अपने कॉलोनी में सबके घर जाकर उत्तराखंड के फ्लड और लैंडस्लाइड के विक्टिम्स के लिए उन्होंने 5450 रुपीज़ कलेक्ट किए. कहाँ से कलेक्ट किए? कॉलोनी से. एंड रुपीज़ 5540 फ्रॉम स्कूल, और स्कूल के टीचर्स की हेल्प से उन्होंने 5540 रुपीज़ कलेक्ट किए. द मनी कलेक्टेड was sent to concerned authority. अब जो उन्होंने पैसे कलेक्ट किए, उन्होंने जो कंसर्न्ड अथॉरिटी थी, जो वहाँ पे उत्तराखंड के लोगों की हेल्प कर रहे थे, जो संस्था थी या जो ऑफिशियल्स थे, उनको उन्होंने वो पैसे भेज दिए. नाउ द क्वेश्चन अराइज. फोर क्वेश्चंस आर देयर. हुज कलेक्शन वाज मोर, कॉलोनी और स्कूल? ओके, तो we should see here colony, स्कूल. ओके, कॉलोनी से कितना कलेक्ट हुआ? 5450. एंड स्कूल से कितना कलेक्ट हुआ? 5540. ओके. In last exercise we have already gone through how we will compare the numbers. हम लोग नंबर को कैसे कंपेयर करेंगे. तो फर्स्ट उसमें जो रूल था वो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हम लोग पहले नंबर ऑफ डिजिट देखेंगे. तो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? हियर वी आर हैविंग 4 डिजिट, हियर वी आर ऑल्सो हैविंग 4 डिजिट. ओके, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Ones, tens, hundreds and thousands. Second rule was कि if the number of digits are equal, then we will compare the thousands place number. So now we are going to compare thousands place पे यहाँ पे क्या है? 5, और यहाँ पे क्या है? 5. Both are equal. If the thousands place number are equal,
then we will compare the hundreds place number. Here we are having 4, here we are having 5. Which one is greater? 5 is greater. So colony's contribution was less than school's contribution, or we can say कि school's contributions was greater than colony's contribution. Okay. So what we will write? We will write an answer whose collection was more. Schools, SCH, schools collection was, oh, we are not having the schools collection was more than colony's collection. Okay. School's collection was more than colony's collection. Clear? Now, first what we will do in answer? First we will compare both colony's collection and school collection like this. Okay, like this, and then we will write school's collection was more than colony's collection. Okay. Next question. What are the things that we can donate beside money for the flood affected people? What are the things that we can donate beside money for the flood affected people? और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं? ये तो मनु ने पैसा कलेक्ट करके, मनी कलेक्ट करके दे दिया, लेकिन मनी के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग फ्लड अफेक्टेड एरिया को डोनेट कर सकते हैं? ओके, तो लेट अस सी, इसको मिटा देते हैं. Let us see what are the things. Question number 2. We can donate cloths, हम लोग डोनेट कर सकते हैं. और क्या डोनेट कर सकते हैं? और we can donate clothes, we can donate our old books to students. और क्या कर सकते हैं? वी कैन डोनेट 3 और 4. आप लोग अपने से लिख के बताइए 3 और 4. ओके, ये आप थोड़ा सा अपने से एक्सरसाइज करिए. क्लियर? थर्ड क्वेश्चन इज, मेंशन एनी 2 situations where you have contributed to help द नीडी. 2 सिचुएशंस ऐसी बतानी है जिसमें हमने ज़रूरतमंद लोगों के लिए, नीडी पर्सन्स के लिए हेल्प किया. ओके, थर्ड क्वेश्चन.
mention any two situations where you have contributed to help the needy. इसमें आपको लिखना है कि आपने, तो मैं लिखूंगा तो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो आपको लिखना है कि आप ऐसी दो कंडीशंस बताइए, दो सिचुएशंस बताइए जहां आपने किसी नीडी ज़रूरतमंदों की मदद की हो। तो मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको बता देता हूं कि जैसे आई हैव डोनेटेड क्रैकर्स टू द इन स्लम एरिया और द नीडी चिल्ड्रेन, or we have donated the food during the lockdown to the needy persons। इस तरह से आपने जो भी आप लोगों ने किया हो वो आप मेंशन करिए। थर्ड क्वेश्चन भी आपको अपने आप ही करना है। सजेस्ट एनी टू सिचुएशन अदर देन फ्लड वेयर वी कैन डोनेट समथिंग। तो दो सिचुएशंस ऐसी बतानी हैं जिसमें हम लोग फ्लड के अलावा क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं जब हम डोनेट करेंगे। सजेस्ट एनी टू सिचुएशन अदर देन फ्लड वेयर वी कैन डोनेट समथिंग। ओके, वी कैन डोनेट जैसा मैंने अभी बताया, डोनेट ड्यूरिंग द वी कैन डोनेट affected families during families of earthquake we can donate the family। okay, we can donate to families of earthquake affected area। भूकंप आ जाता है, सारे लोगों के मकान गिर जाते हैं और लोग बेघर हो जाते हैं, तो हम लोग वहाँ पे भी अपना कुछ सामान या कोई हेल्प डोनेट कर सकते हैं। ओके, इसमें सेकेंड पॉइंट एक और है कि we can donate to समुद्र देखिए है, कोस्टल एरिया जो होते हैं वहाँ पे तूफ़ान आता है, तो उस तूफ़ान वाले एरिया में भी जब तूफ़ान आता है तो घर पूरे तबाह हो जाते हैं, लोगों के घर पेड़ों के नीचे दब जाते हैं या पानी आ जाता है, फ्लड आ जाता है, तो वहाँ पे भी हम लोग डोनेट कर सकते हैं। ड्यू टू वी कैन डोनेट टू द फैमिलीज ऑफ कोस्टल एरिया अफेक्टेड ड्यू टू हरिकेन। ओके, जो तूफ़ान आते हैं उस तूफ़ान के कारण जो तबाही हो जाती है उससे अफेक्टेड लोगों को हम लोग डोनेट कर सकते हैं। तो ये दो सिचुएशन बता दी। यहाँ पे भी मैं चाहूँगा कि आप लोग कुछ अपने से भी कुछ अगर आप लिख सकते हो तो लिखिए। ओके, तो ये हमारा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। इसको हम लोग अब कंप्लीट करेंगे अपने कॉपी में, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रेन टीजर्स को स्टार्ट करेंगे। टिल देन, गुड बाय।